and beyond. Today, we will be covering topics to ensure seamless business operations. We'll be addressing some major pain points and assisting you in your quest for simplified business journey. With this, I would like to introduce our first speaker of the day, CA Navjot Singh. CA Navjot is a partner in Text to Business Advisors and member of MSME Business Forum India. He is an associate member of Institute of Chartered Accountants of India, having more than 6 years of experience in appeals, tax restructuring, tax advisory, and consulting pertaining to indirect taxes. Also a specialist in the field of refund and tax regimes. He has amassed abundant expertise over the years in DGFT and custom-related issues such as representation of exporters and importers with the Office of Director General of Foreign Trade and Directorate of Revenue Intelligence. He has argued a large number of cases before revenue authorities and tribunals across India and has conducted a large number of indirect tax litigation assessments for MNCs and listed companies. He has been assisting his clients in preparation of documents, representations, and coordination with various targeted departments for processing various subsidy incentives as announced by center or state governments. He is also assisting MSMEs to find solutions to varied issues confronted. Let's now hear from subject matter expert himself. Over to you, CA Navjot Singh. Thank you so much, Sahil ji, for warm welcome, and thank you, Tele Solutions, for providing me the opportunity to speak on the very important topic, which is the aftermath of 47th GST Council meeting. Recently, you must have known that after 47th GST Council meetings, बहुत सारे notifications और circulars issue हुए थे. क्या changes हैं? सारे changes हम cover नहीं करेंगे. We are covering only those changes which are, hitting the businessman directly या बहुत सारे business को at large effect करते हैं. तो 47th Council meeting 29th of Jan को हुई थी और 2 दिन चली थी, 28th and 29th, and through a press release जितने भी changes थे 2 दिन के वो सारे बताए गए थे कि कौन कौन से changes हैं. From return filing, tax rate या फिर law में change हो तो काफी सारे changes हैं. मतलब आप मान के चलिए कि it seems like that they have been planning it from a long time. और काफी सारे changes हैं जो कि 18th of July से applicable हैं. अगर हम tax rate की बात करें, काफी सारे changes हैं जो कि अगले साल from 1st of January applicable हैं और उन डेट से एप्लीकेबल हैं जिन जिन सर्कुलर्स में, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि हाँ ये वाला चेंज इस डेट से, तो सारे उस तरह से एप्लीकेबल है. तो सारी चीजों को, हर तरह के चेंज को हमने 2 हिस्सों में बांटा है. एक तो वो है जहाँ पे टैक्स रेट से रिलेटेड कोई चेंज है टैक्स, और दूसरा है नोटिफिकेशन सिर्फ सर्कुलर से रिलेटेड या फिर डिस्क्लोजर से रिलेटेड. तो पहले हम नोटिफिकेशंस की बात करेंगे, फिर हम सर्कुलर्स की बात करेंगे. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और फॉरमोस्ट चेंज था वो था जो टैक्सेशन है वो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स पे किस तरह से की जाए जीएसटी की. अगर हम देखें इस चेंज से पहले किस तरह से होता था, जो भी वेरियस फूड आइटम्स हैं, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, फ्लोर हो, पनीर, हनी, सर्टेन मीट आइटम्स, फिश एक्सेट्रा, इन सब पे अगर ये जितनी भी आइटम थी, अगर ये सारी आइटम्स आप नॉन ब्रांडेड किसी भी ब्रांड में आप इसको बेचते नहीं थे, या फिर these were sold under brand name on which actionable claim or enforceable right in court of law is foregone. मतलब मैं उसको एक ब्रांड तो लिख के दे रहा हूँ उस पे, लेकिन हाथ ही हाथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर कल को मान लो इस नाम से कोई और बिजनेस शुरू करता है तो मेरा कोई राइट नहीं है, ना ही मैं उस पर कोई केस कर सकता हूँ. जब ऐसा हुआ तो काफी बिजनेसमैन ने क्या किया कि अब अपने ब्रांड नेम को डी रजिस्टर करवा लिया. अब वो क्योंकि बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी मार्केट में बन चुके थे तो उनको किसी ब्रांड नेम की एज सच रजिस्टर्ड ब्रांड नेम की जरूरत नहीं थी. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफी लोगों को इस चीज का फायदा हुआ और उन्होंने अपने गुड्स, अपने जितने भी इस तरह के गुड्स थे, वीट, राइस, उन सबको अनरजिस्टर करवा लिया अपने ब्रांड नेम को, और उसके बाद दे स्टार्टेड सेलिंग इट. सो that's how they started kind of misusing the law, and then the government changed the law. What did they change? The amendment was brought to all such entries to exempt only those goods which are not put in a container
and which bore either a registered brand name or brand name on which actionable or enforceable right in court of law was not foregone. मतलब सिर्फ उन्हीं, अगर आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है या फिर आपने एक एफिडेविट दिया है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप अपने राइट्स को फॉरगो कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं केस में ही आपको एक जीएसटी की एग्जम्पशन मिलेगी। अब एक एम्बिग्यूटी थी कि रजिस्टर्ड ब्रांड नेम किसको कहा जाए, क्या वो ट्रेडमार्क जो एक्ट है एक जिसमें आप अपने ब्रांड या लोगो को रजिस्टर करवाते हैं, सो विल दैट बी रेफर्ड एज अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, और कौन से लॉ में उस ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाना जरूरी है? तो मतलब किसी भी तरह का कुछ भी डेफिनेशन नहीं थी। नाउ व्हाट इज द चेंज in 47th council, after 47th of council meeting, a notification 6/2022 was issued which said that exemption will be only applicable in the case when in the case other than pre-packaged and labeled. मतलब उन्हीं गुड्स को या उन्हीं आइटम्स को एग्जम्पशन मिलेगी if they are other than pre-packaged and labeled. This phrase was defined in the notification. Now they have used the word pre-packaged and label. अगर आपका product pre-packaged या pre-labeled है, in that case the exemption will not be available. The GST will be applicable, and if it is not bearing any pre-packaged or labeled goods, तो उस केस में आपको exemption मिलेगी. Now what is pre-packaged and labeled means? This is defined as per Legal Metrology Act. तो जीएसटी में ही उन लोगों ने रेफरेंस दे दी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की, जिसमें हर तरह की कंडीशंस या हर तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं प्री पैकेज्ड और लेबल्ड को लेकर। तो हम पहले समझते हैं प्री पैकेज्ड कमोडिटी किसको कहते हैं। नाउ सेक्शन 2I ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट डिफाइन करता है प्री पैकेज्ड कमोडिटी को, जो कहता है कि अगर कोई भी पैकेज पैक किया गया है परचेजर, जब जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, इफ यू गो टू एनी शॉप, इफ यू सी दैट देयर इज अ पैकेट ऑफ एनी पल्सेस, एनी राइस, एनी सीरियल, so you see that that package was already there even if you go to that shop, even if you don't go to that shop. That means that package was ready in absence of you, and it was sealed before you went to that shop, and a predetermined quantity was put in that particular container or particular bag. So these kind of commodities or these kind of packaged is called as pre-packaged commodity. Now, if this sort of packaged commodity is getting sold and it is bearing the name and the branded name or the label is there as per Legal Metrology Act, तो GST की exemption नहीं मिलेगी. They will have to, seller will have to pay the GST. Now, further, if we go in this, there are few technical things. Let's do one thing. After this notification came into picture, CBIC, the Central Board of Indirect Taxes, what did they do is they came up with some sort of frequently asked questions. Let's see those questions, that how they have tackled or how they have answered to all the queries. Now, first question is, what is the scope of pre-packaged and labeled for the purpose of GST levy on food items like pulses or cereals? Now, for the purpose of GST, the expression pre-packaged and labeled हमने समझ लिया, जो कि clause I में उन्होंने define कर रखा है, that whether when any commodity is pre-packed or a label securely affixed, okay, on that, and without the purchaser being present, is placed in a package of whatever nature. परचेजर को ना तो ये पता था कि वो कितनी क्वांटिटी का होगा, और ना ही उसको ये पता था कि उसकी पैकेजिंग किस तरह से होगी. दैट पैकेजिंग इज प्री डिफाइंड. वो सिर्फ परचेजर के लिए नहीं, परचेजर के कस्टमाइजेशन के लिए नहीं की गई है, वो पहले से ही प्री पैक था. तो दो कंडीशंस, दो एट्रीब्यूशन होना बड़ा जरूरी है टैक्सेशन के लिए जीएसटी में. एक तो उसका प्री पैकेज होना जरूरी है. सेकंड, it is required to bear the declaration under the provisions of Legal Metrology Act. Legal Metrology Act के हिसाब से जो भी उस पे मेंशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम और उसका कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इस तरह से सारी चीजें उस पे अगर डिफाइंड हैं, तो वो सारी चीजें in that case the GST will be applicable. Now,
if such specified commodities are supplied in a package that do not require declaration, अगर मान लीजिए ऐसा कोई उन्होंने पैकेजिंग कर दी है या इस टाइप की पैकेजिंग है which do not require any sort of declaration by legal metrology act, it is defined in the law that items such as pulses, cereals, rice, wheat, flour, आटा, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये प्री पैकेज्ड कमोडिटी में उस पर डिक्लेरेशन देनी जरूरी तभी है अगर उसकी पैकेजिंग अप टू 25 किलोग्राम या 25 लीटर्स तक की है। अगर मान लीजिए आपने इससे ज्यादा की पैकेजिंग की है तो वो इसके प्रीव्यू से बाहर हो जाता है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू सी, अगर आप किसी शॉप पे गए एंड इफ यू बाय अ राइस बैग ऑफ 25 kg, देन एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट उसको उस पे लेबल डालना जरूरी है, उसको एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो भी नेसेसरी डिक्लेरेशंस हैं वो डालनी जरूरी है। बट इफ यू बाय 30 kg ऑफ पैक, देन उस पे वो डिक्लेरेशन को डालना जरूरी नहीं है और वो 30 kg का जो पैक है दैट विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सो इट इज क्लैरिफाइड दैट अ सिंगल पैकेज ऑफ दीज आइटम्स जो भी उन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं ना, दिस 25 kg फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी like cereals, pulses, flour, just a necessity items containing a quantity of more than 25 kg would not fall in category of pre-packaged and labeled commodity for the purpose of GST. उसको हम pre-packaged और label commodity में नहीं मानेंगे चाहे उसने उस पर registered brand name अपना डाल रखा है, and it will not attract GST. So आपको दो सारी चीजें देखनी है whenever we are talking from a taxation perspective. तो आज से पहले क्या होता था, जितने भी नॉन ब्रांडेड गुड्स थे और जितने भी ब्रांडेड गुड्स थे उस पे उस तरह से टैक्सेशन लगता था कि नॉन ब्रांडेड जो है उन पे टैक्स नहीं लगेगा और जो ब्रांडेड है उन पे टैक्स लगेगा। आज की डेट में क्या कर दिया है, यू विल हैव टू सी दैट वेदर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज रिक्वायर्ड एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अगर उसको उस पर कोई डिक्लेरेशन डालनी है, उस पर उसमें कुछ ब्रांड नेम उस पर लिखना है या उसकी पैकेजिंग अप टू 25 kg है, अगर वो रिटेल पर्पज के लिए है तो उस केस में आपको देखना है कि उसका टैक्सेशन किस तरह से लगेगा। Then you will have to check a lot of things. Then you come to a conclusion that whether the item will be taxable or not. Next question की तरफ चलते हैं। Whether GST would apply to a package that contains multiple retail packages. For example, a package containing 10 retail packs of flour of 10 kg each. अगर मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा पैकेट है जिसमें 10-10 किलो के 10 आइटम्स हैं तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यस, इफ सेवरल पैकेजेस इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल, अगर वो रिटेल सेल के लिए हैं, अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर को जा रहे हैं, आर सोल्ड इन अ लार्जर पैक, देन जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। नाउ सच पैकेज मे बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर आल्सो। These individual packs of 10 kgs are meant for eventual sale to retail consumer. However, a package of say rice containing 50 kg, अब 50 kg का राइस आपने सिर्फ एक ही इंडिविजुअल बैग में डाल रखा है, would not be considered as a pre-packaged and labeled commodity for the purpose of GST levy, even if Rule 24 of legal metrology mandates certain declaration. जैसा कि मैंने पहले बोला कि हो सकता है कि उस पर डिक्लेरेशन लगती हो, डिक्लेरेशन एज पर लीगल मेट्रोलॉजी लगती हो, बट क्योंकि वो 25 kg से ज्यादा हो गया तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सो इफ वी रीफ्रेम दिस, सो देयर इज अ बिग पैकेज इन व्हिच 10 individual packages are there, okay, and another one is the single 50 kg pack. So if it is a 10 kg pack of 10 packet and then it is packed like that, then GST would be applicable because ultimately you are selling it to ultimate customer in the package of 10 kg, which is less than 25 kg. And if you are selling, if you have bought like 50 kg of a big package and if you are selling out of that 50 kg packet, then उस केस में GST नहीं लगेगा. So that's the criteria. Now काफी लोगों को लग सकता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा या लोग इस तरह से प्लानिंग करेंगे इस चीज को बेचने की. See that might happen, but हम सिर्फ लीगल चीजों की बात करेंगे कि वो लीगली किस तरह से उसको टैक्स किया गया और लीगली उसको किस तरह से एग्जम्प्ट किया गया. Now next question is, at what stage would GST apply on such supplies? Whether GST would apply on specified goods sold by manufacturer producer to wholesale dealer,
who subsequently sells it to retailer. जो जीएसटी की लेवी है, जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है, क्या वो सिर्फ रिटेल सेल्स के लिए लगती है या फिर वो होलसेलर पे भी लगेगी? So GST would apply whenever a supply of such goods is made by any person, चाहे वो मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग टू डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाइंग टू रिटेलर हो और रिटेलर सप्लाइंग टू इंडिविजुअल कस्टमर हो. सो एवरी चेन पे जीएसटी लगेगा. फर्दर द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर वुड बी इंटाइटल्ड टू आईटीसी. जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप देखते हैं, that benefit will be given by supplier in accordance with ITC provisions of GST. A supplier availing threshold exemption or composition scheme would be entitled to exemption. So as such कोई exemptions नहीं दी गई हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को या फिर रिटेलर को, but this is a supply chain in which there can be a margin, but the GST would be applicable to the whole chain if it is applicable, and if input tax credit will be given. Now, whether tax is payable if such goods are purchased in a package of up to 25 kg or 25 liters by a retailer, but a retailer sells it in loose quantity in his shop for any reason. Now, अगर हम देखते हैं कि अगर कोई भी पैकेज अप टू 25 kg है तो आप कहते हैं कि टैक्स लगेगा उस पर. अगर मान लीजिए उस 25 kg में भी उसको वो लूज क्वांटिटी में बेच रहा है, if the rice bag is of 25 kg and if you're selling in a loose, आप उस 25 kg में से जितना कस्टमर को चाहिए उतना निकाल के उसको आप दे रहे हैं, उस केस में जीएसटी लगेगा. GST applies when such goods are sold in pre-packaged and label packs. Therefore, GST would apply when pre-packaged and label package is sold by distributor, manufacturer to retailer. However, if for any reason retailer supplies the item in loose quantity from such package, then supply by retailer is not a supply of packaged commodity for purpose of GST levy. तो final जो supply हो जाती है, क्योंकि वो loose quantity में है, तो वो एक तरह से सप्लाई नहीं है पैकेज्ड कमोडिटी की फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लेवी. दैट मींस उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. बट अगर आप देखेंगे, क्योंकि रिटेलर उसको जब लेके आया था तो वो प्री पैकेज्ड और लेबल था, दैट मींस उस पे वो टैक्स पे करके लेके आया था उसको. नाउ अगर वो फाइनल कस्टमर को लूज क्वांटिटी में दे रहा है तो सर्टेनली वो जीएसटी के अमाउंट इन टर्म्स ऑफ दैट मार्जिन और समथिंग वुड बी चार्जिंग. तो वो किसी और रूप में वो अमाउंट उनसे ले सकता है एंड कंज्यूमर से, बट दिस क्रिएट्स अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स. सो दिस क्रिएट एनी हाउ द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द फाइनल कंज्यूमर. Now, whether tax is payable if such packaged commodity are supplied for consumption by industrial consumers or institutional consumers. जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि रेलवे है जो कि बहुत बल्क में खरीदता है, कोई एक बड़ी कंपनी है जो कि बहुत बल्क में खरीदती है, ऐसे कस्टमर्स को, ऐसे कंज्यूमर्स को एक्सक्लूड किया गया है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में. दैट मींस देयरफॉर इफ एनी पैकेज्ड और एनी सप्लाई इन सच मैनर एज टू एक्सक्लूजन्स provided under the said, it will not be considered as pre-packaged and labeled products for the purpose of GST levy. तो अगर आप किसी भी तरह की सप्लाई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स को कर रहे हैं तो किसी भी तरह की जीएसटी की लेवी नहीं आएगी उस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म. एक्स मान लीजिए एक राइस मिलर है who sells package containing of 20 kg rice but do not making the required declaration under legal metrology act. वो 20 kg का एक राइस का बैग बेच रहा है एक राइस मिलर, लेकिन उस पर किसी भी तरह का डिक्लेरेशन वो नहीं दे रहा है एंड रूल्स में दे रहा है. कोई भी एक्ट का या उसके रूल्स का कोई भी डिक्लेरेशन उसको जो देना चाहिए था वो नहीं दे रहा है. Would it still be considered as pre-packaged and labeled and therefore liable to GST? Yes, क्योंकि प्री पैकेज्ड और लेबल कमोडिटी को दो तरीकों से माना जाता है. एक तो वो प्री पैकेज था, एक उस पे ये लिखा गया दैट he is required to make declaration on that package. अगर if he is required as per law, GST तब लगेगा अगर वो प्री पैकेज है या फिर it is required to mention those declaration on that package. Now ultimately if he has mentioned those declaration then it's fine, then GST is applicable. Even if he has not mentioned the declaration on the package, then also GST would be applicable because as per law उसको उस पे डिक्लेरेशन डालनी चाहिए थी. तो इसको अगर हम करेक्ट करें तो
कोई भी अगर आप जीएसटी की लेवी प्री पैकेज और लेबल इसमें फॉर्म में देखेंगे तो आपको दो चीजें देखनी है, एक तो प्री पैकेज हो या फिर उस पर डिक्लेरेशन रिक्वायर हो एज पर एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट या उसके कोई भी रूल्स। उसने अगर ऐसा किया है तो ठीक है, अगर नहीं भी किया तो भी टैक्स लग जाएगा। अगर उसको रिक्वायर्ड था तो हो सकता है कि उसको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से कोई उस पर पेनल्टी लग जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको जीएसटी भी लगाना पड़ेगा उस पर। इसके अलावा कोई रेलेवेंट इशू है तो the legal metrology act and the rules made thereunder prescribes citation for exclusion as stated above and provide certain exemptions under rule 26 of legal metrology act. It is reiterated therefore that if supplied in such manner as attract exclusion or such exemption, the item shall not be treated as। अब मान लीजिए किसी तरह की कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आती है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में, जैसे मान लीजिए कल को वो राइस को एक्सक्लूड कर देते हैं कि राइस वाले जो राइस मिलर हैं उनको कोई डिक्लेरेशन देनी जरूरी नहीं है अपने पैकेज पे, तो वही वाली एग्जम्पशन जीएसटी में भी एप्लीकेबल होगी और उस पर्पस के लिए उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो अब आपको दोनों चीजें चेक करनी है। जो भी लोग इस तरह के बिजनेस में हैं, इफ यू गाइड देम, आपको दोनों चीजें चेक करनी है। आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में भी एग्जम्पशंस को चेक करना है, आपको जीएसटी में भी एग्जम्पशन को चेक करना है, आपको जो लॉ है वो दोनों पढ़ने हैं। लेकिन जो मेन लॉ गवर्न होगा वो लीगल मेट्रोलॉजी का पहले एक्ट वो गवर्न होगा, देन वी विल सी कि इट इज पहले आपको प्री पैकेज्ड और लेबल्ड उसको प्रूव करना है, देन उस पे देखोगे कि जीएसटी की लेवी किस तरह से। ये था प्री पैकेज्ड और लेबल का। इन्होंने काफी सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट किए हैं इसमें, आने वाले टाइम में होंगे भी इसमें, बट एज आई स्टेटेड वील हैव टू सी टू एक्ट्स वेरी नीटली कि कोई किसी तरह की कोई एग्जम्पशन ना हो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी तरह की पैकेजिंग को लेकर। सेकंड, हमें जीएसटी लॉ में भी एग्जम्पशन को चेक करना है, दोनों एक्ट को देखते हुए लेवी को डिसाइड करना है। नेक्स्ट जो एग्जम्पशन थी या जिस तरह का जो चेंज है वो ये लेके आए हैं जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर कोई भी किसी भी तरह का रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर मैं उसको रेंट पे दे रहा हूँ, if I'm renting it out to a commercial place or any registered person for a commercial purpose to a registered person, then उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्या ये चीज इतनी इजी है? Is it that easy to understand? So let's understand the background of this. There was an education guide by CBEC, जो जीएसटी से पहले लॉ था, एक्साइज और कस्टम्स का बोर्ड जो एक अलग से हुआ करता था सर्विस टैक्स के टाइम पे। तो they have interpreted the term residential dwelling or residential accommodation as which do not include hotel, motel, inn, guest house, campsite, lodge, houseboat or any like places meant for temporary stay। कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी accommodation जिसमें टेम्पररी स्टे नहीं किया जाता, जिसमें लॉन्ग स्टे किया जाता है, उसको हम रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बोलेंगे। डिस्पाइट सच क्लैरिफिकेशन, application of the same in context of hostel was not clear। अगर हम इन सब चीजों को देखें, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, एवरीथिंग इज देयर, बट हॉस्टल के बारे में बात नहीं की गई थी। इन जीएसटी लॉ देयर वाज ए कर्नाटका एडवांस रूलिंग जिसमें एक केस का जिक्र है कि एक एप्लीकेंट है जो कि को ओनर है एक ऐसी प्रॉपर्टी का जिसमें 42 रूम्स हैं। अब उन 42 रूम्स में वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स रहते हैं और उसमें 3 महीने से 12 महीने तक रहा जाता है। Now authority disallowed the benefit of exemption stating that said property was like a hotel। जो अथॉरिटी एडवांस रूलिंग की उन्होंने बोला कि एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी आपको, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज this is used as a hotel, so no imagination can termed as a residential dwelling। Now if the same is given for residential purpose, the services provided is not used as residence by the lessee। Now services by hotel, guest house, campsite, by whatever name called or other commercial places for residential lodging purposes covered by different entries in the schedule of exemption notification or under different notification, and this shows that room though given on a rent for residential purpose would not amount to residential dwelling। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आप कहेंगे किसको। इवन आफ्टर दिस चेंज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया गया, उसकी टैक्सेबिलिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया।
इस एडवांस रूलिंग के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। जो हॉस्टल ओनर थे, क्या हॉस्टल द्वारा दी गई सर्विसेज टू देयर रेजिडेंट्स इज टैक्सेबल और नॉट? नाउ एज पर दिस रूलिंग, yes, it is taxable. GST would be applicable. After this advance ruling, the applicant went to the appellate authority of advance ruling, and that authority also said that yes, this is right. Ultimately, the applicant went to the High Court, and High Court said that the term residential dwelling has to be understood in a normal trade parlance. आपको residential dwelling को normal trade parlance में समझना पड़ेगा. Deriving and understand from the same, the activity of leasing out hostel to students and women would be considered as residential dwelling. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, जैसे मान लीजिए आप किसी को रेंट पे अपना फ्लैट दे रहे हैं, आपके एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट कर रहे हैं फॉर रेजिडेंस पर्पस फॉर अ लॉन्गर स्टे, इट्स नॉट लाइक अ होटल. आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा. अगर एक हॉस्टल है विच ऑल्सो रिलाइज ऑन द सेम स्कीम, सेम पैरामीटर्स, जिसमें कि लॉन्गर स्टे के लिए लोग रुकते हैं, शॉर्ट स्टे के लिए नहीं रुकते हैं, विच इज नॉट हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होटल, तो आपको उस ट्रेड पार्लेंस में सोचते हुए देखना है that yes, this is not a place for commercial purpose, but this is for a residential dwelling. So the GST exemption should be applicable. And that's how the ruling was quashed. ये समझने के बाद you will understand much better the recent change. Now in today's time also, as I said, that residential meaning, the meaning of residential dwelling is still not free from the ambiguity because there is no clarity on the same. Now, what is the change which I was mentioned, that if in today's time, if you rent out your property to any person or to any registered person for commercial purpose, in that case, GST would be applicable. Now, these two changes we have studied, pre-packaged and labeled, then the GST on residential dwelling. Then what is the change in the GTA industry, goods transport agency industry? What is the change? There is a notification for bar 2022 dated 13th July. What does it say? अगर आप देखें, पहले exemption दी गई थी GTS को, if the value, और ये value based exemption थी, that the consideration charged for transportation of goods on a consignment transported in single carriage does not exceed 1500, or where consideration charged for a transportation to all goods for a single consignee does not exceed 750 rupees have been omitted. तो जो 1500 रुपए और 750 रुपए का exemptions दिया गया था GTS को, जो ये लोग चार्ज करते थे एज अ, जिसको बोलते हैं बिल्टी, जो अपना फेयर है वो ये लोग चार्ज करते थे, अगर वो इससे ज्यादा था तभी उस पर टैक्स लगता था, अदरवाइज 1500 और 750 तक वो एग्जम्प्टेड था. नाउ ये एग्जम्पशंस हटा दी गई है. दैट मींस जीटीए द्वारा कोई भी सर्विसेज दी जाती है रोड ट्रांसपोर्ट की, इन एवरी केस जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द चेंज? नाउ वी नो दैट जीएसटी, अगर जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल है हर केस में. जैसे मान लीजिए जो जीटीए है, अगर मान लीजिए वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज है, कोई फैक्ट्री है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कोई सोसाइटी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म है, या एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है. इन ऑल दीज केसेस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल था. आज की डेट में इन कैटेगरीज पे भी जीटीए को ऑप्शन दिया गया है दैट ही कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. पहले इन पे मैंडेटरीली आरसीएम में टैक्स पे किया जाता था, बट नाउ ही इज हैविंग अ ऑप्शन टू पे इन अ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आल्सो. Now, if method is opted as RCM, who will be liable to pay the tax? The recipient who have received the services from GTA, and the rate would be 5%. In forward charge mechanism, GTA के पास दो ऑप्शन है. 12% if he avails the ITC, 5% if he doesn't avail the benefit of ITC. Now, this 5% or 12% option you will have to avail before the commencement of financial year. आपको अपने
15 मार्च से पहले पहले 50 जो फाइनेंशियल ईयर जैसे खत्म होता है, फ्रॉम 15th March, before 15th March, you will have to opt the option for the next year, and you will have to submit that declaration in your jurisdictional GST office. और जो 22-23 जिस ईयर में अभी फिलहाल हम हैं, फॉर 22 and 23rd, this option can be exercised before 16th of August 2022. So that's how the change have been made in GT industry. Now what are the complexities in this is जो अब आप देखेंगे जो ऑप्शन ऑफ पेमेंट अंडर FCM है, अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपको पे करना है या आपको RCM में पे करना है, ये आपको साल के पहले चूज करना है. बट जो रेट है 5% और 12%, दैट यू कैन चेंज ड्यूरिंग द ईयर. नाउ इफ यू सेलेक्ट इनिशियली for like 3 months or 4 months, if you see that you have a lot of input tax credit in the GTA business, then you might take that option of 12%. But later on, after 3 months, if you feel like, I don't have any ITC and I can avail the option of 5%, then it sort of creates some sort of confusion, because जो 5% वाली supplies हैं, उनको वो exempted supplies की category में अगर हम define करेंगे, उसमें आती हैं. And then जो ITC रिवर्सल है और वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी इस पे. So that's how they have not made any clarity in this respect that how this will be done. If any rate change is there or is it possible, या फिर वो rate change भी possible नहीं है. आप सिर्फ forward charge mechanism या फिर reverse charge mechanism ही opt कर सकते हैं. उसके साथ साथ आपको rate भी choose करनी पड़ेगी कि आप ITC के साथ अपना बिजनेस करेंगे पूरे साल या बिना ITC के अपना बिजनेस करेंगे. जो mix and match है वो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है. अब बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की चेंज की. नोटिफिकेशन 3/2022 read with notification 4/2022, which says that services provided by clinical establishment by way of providing room other than ICU, CCU, intensive cardiac care unit, neonatal intensive care unit, having room charges exceeding rupees 5,000 per day to a person receiving healthcare services. अगर मान लीजिए कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी डेफिनेशन रेट जो एग्जामिशन नोटिफिकेशन है उसमें दी गई है, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट? अगर किसी को रूम देता है हॉस्पिटल में रेंट पे एंड प्रोवाइडिंग अ रूम लाइक फॉर केयर एंड एवरीथिंग. So if that charges for that room is exceeding 5,000 per day, in that case, the GST of 5% without ITC would be required to pay by the hospital. Now this 5,000 rupees जो उन्होंने टैक्स लगाया, ये किन किन फैसिलिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि ICU है, कोई कार्डिक केयर यूनिट है या फिर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है. इस तरह की जो क्रिटिकल यूनिट्स हैं उन पे ये GST एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे उनका रूम रेंट 5,000 से ज्यादा हो. बट अगर मान लीजिए वो 5,000 का है और इन सब के अलावा, इन 4 कैटेगरीज के अलावा है, then you will have to pay 5% of tax without benefit of ITC. इसके अलावा जो रेट के चेंजेस अगर आप देखेंगे तो प्रिंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, इंक, नाइफ्स, पंप्स, LED, तो इन सब पे 12%, 18% है. सोलर हीटर 5% थे जो कि अब 12% हो चुके हैं. कट और पॉलिश डायमंड जो था उस पे पहले 0.25% टैक्स था जो कि अब 1.5 टैक्सेस हो चुका है. ऑस्टोमी अप्लायंसेस और ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस जो थे वो पहले 12% थे, बट इट हैज रिड्यूस्ड टू 5%. उसके अलावा जो सर्विसेज हैं, फॉरमैन टू चिट फंड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये 12 से 18 हो गई हैं. वर्क कॉन्ट्रैक्ट जितने भी EPC जो EPC कंपनीज हैं, it will hit them that earlier they used to charge 12%, now the tax rate would be 18%. Now work related to processing of hides, skins and leather, manufacture of leather, 5 to 12% it has been there. जितना भी वर्क, जॉब वर्क है, मतलब जो लेदर इंडस्ट्री में, वो 5% से 12% हो गया है. IGST on specified defense item, it is nil tax rate. Transport of goods and passenger by ropeways, it has been reduced from 18 to 5%. Then renting of truck, goods and carriage, जिसमें cost of fuel भी included है, तो वो 18 से 12% आ गया, just to
take care of that fuel part, the taxation of the fuel part. So इस तरह के सारे changes हैं टैक्स रिलेटेड. अब बात करते हैं सर्कुलर्स की. जो सर्कुलर्स इन लोगों ने दिए हैं, डिस्क्लोजर या लॉ से रिलेटेड जो क्लैरिटी इन लोगों ने दी है. सो पहली बात करते हैं हम जीएसटी और 3B की. जीएसटी और 3B में हम किस तरह के चेंजेस हैं. Let's not talk about a technical in a technical nature. Let's understand that what sort of change has been there. हम जितने भी आईटीसी की बात करते हैं, आईटीसी दो तरह के हैं, एक एलिजिबल आईटीसी, एक इनएलिजिबल आईटीसी. जब आप आईटीसी को क्लेम करते हैं जीएसटी और 3B में, तो पहली चीज तो ये है, आपको जीएसटी और 2B में जितना भी आपका क्रेडिट आ रहा है, आपको स्टार्ट वहां से करना है. आप 2B में जो अमाउंट आ रही है जीएसटी की, आप उससे स्टार्ट करेंगे ऑल आईटीसी में. देन आपको जितना भी आईटीसी रिवर्स करना है. अब रिवर्सल किस किस तरह की हो सकती है. हो सकता है कि वो रिवर्सल 42, 43 की हो. आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें आप कॉमन सर्विसेज, आप एग्जम्प्टेड सर्विसेज भी देते हैं, आप एग्जम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई करते हैं, आप टैक्सेबल गुड्स भी देते हैं. तो आपको अपने आईटीसी को प्रोपोर्शनेटली जो एग्जम्प्टेड गुड्स का है, एग्जम्प्टेड सर्विसेज का है, उसको आपको रिवर्स करना है. एक तो ये इस तरह का रिवर्सल है, या फिर सेक्शन 17(5) वाला रिवर्सल है, जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करता है. इंश्योरेंस की सर्विसेज हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हो, तो काफी तरह के आईटीसीज ब्लॉक रहते हैं. तो या फिर वो उस तरह का आईटीसी है जिनको हम नाम देंगे परमानेंट रिवर्सल, जो कि हमेशा ही रिवर्स होंगे. इन फ्यूचर आप कुछ भी कर लीजिए उस एक्टिविटी में, उसको आप वापस से रिक्रेडिट नहीं ले पाएंगे उसका. तो आपको 2B में आपने 100 रुपीज लिखे, उस 100 रुपीज में से ये वाले क्रेडिट भी होंगे जो आपको माइनस करने हैं उसमें से. दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट रिवर्सल. उसके अलावा बात आती है टेम्परेरी रिवर्सल की. जैसे मान लीजिए आपने अपने वेंडर को 6 मंथ्स में पेमेंट नहीं दी, आपके पास इनवॉइस था, आपके पास गुड्स नहीं थी, तब भी आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे. आपके पास गुड्स थी, आपके पास इनवॉइस नहीं था, आप क्रेडिट तब भी नहीं ले पाएंगे. सो इन दैट केस आप क्रेडिट तब लेंगे जब आपके पास गुड्स भी होंगी, इनवॉइस भी होंगी, या आप अपने वेंडर को 6 मंथ्स में पेमेंट भी दे देंगे. तो इस तरह के रिवर्सल्स वो हैं जो टेम्परेरी आपको उनका आईटीसी नहीं लेना है, लेकिन इन फ्यूचर शायद आप उस आईटीसी को वापस से रिक्लेम करेंगे. तो जब आप उनको रिक्लेम करेंगे तो आप उनको ऑल अदर आईटीसी में क्लेम करेंगे इन नेक्स्ट मंथ्स. और इस तरह के आईटीसी जिनको आप रिक्लेम करते हैं, आपको इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है टेबल 4D1 में एज अ डिस्क्लोजर. तो ये चेंजेस हैं. आपको रिवर्सल्स को दो तरह से देखना है. परमानेंट रिवर्सल जो कि हमेशा के लिए रिवर्स हो चुके हैं, आपके किसी भी एक्ट से वो वापस से रिक्रेडिट नहीं होंगे, या फिर वो टेम्परेरी रिवर्सल्स जो कि फिलहाल एज ऑफ नाउ ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस आपको उनका आईटीसी नहीं मिल सकता है, लेकिन इन फ्यूचर आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशंस आपको उनका क्रेडिट मिल जाएगा. की पॉइंट्स क्या है. एडिशनल डिस्क्लोजर, एडिशनल बर्डन. एक तरह का एडिशनल डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा हर बार, और एक तरह से एडिशनल बर्डन भी क्रिएट करता है. आपको जीएसटी और 2B पे काफी रिलाय रखना पड़ेगा, आपको उसको ट्रैक रखते रहना होगा. अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट जीएसटी और 2B में गलत आ रहा है, सही आ रहा है, आपको अपने वेंडर को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि इसको सही किया जाए. क्योंकि जीएसटी और 2A और 2B में यही फर्क है कि जो 2A है इट इज अ डायनेमिक स्टेटमेंट जो कि चेंज होती रहती है, लेकिन 2B स्टेटिक स्टेटमेंट है. अगर एक बार क्रिएट हो जाती है देन वो चेंज नहीं होगी उस महीने की. तो अगर कोई एक वेंडर है जो कि 3 महीने लगातार गलती कर रहा है, लेट फाइलिंग कर रहा है, रॉन्ग फाइलिंग कर रहा है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, आपको ध्यान से आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें क्रेडिट में लॉस हो रहा है उस चक्कर में. और आपको अपने डिस्क्लोजर्स को अपनी, जब आप अकाउंटिंग करेंगे अपनी टैली में, तो आपको उसको परमानेंट रिवर्सल्स और टेम्परेरी रिवर्सल्स में डिफरेंशिएट करके दिखाना है. इस तरह से सारे चेंजेस हैं इसमें. इसके अलावा आपको इंटरस्टेट सप्लाईज जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को करते हैं, या यूआईएन होल्डर्स को करते हैं, उसको आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज दिखाना पड़ेगा टेबल 3.2 में. ये अगर आप इसको जीएसटीआर 1 में सही से दिखा रहे हैं तो आपको जस्ट इसको वैलिडेट करना है. उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट की. किस तरह का चेंज है. चेंज इसमें नहीं है, क्लैरिफिकेशन है कि एज पर सेक्शन 110 जो 110C था, जिसमें बताया गया था कि कोई भी अमाउंट जो कि कैश लेजर में, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ मेरे दूसरे रजिस्ट्रेशन ऑफ हैविंग द सेम पैन. मतलब डिस्टिंक्ट पर्संस को अपना आईटीसी कैश लेजर का
ट्रांसफर कर सकता हूँ. दिस वुड बी पॉसिबल ओनली इफ ट्रांसफरर यूनिट इज नॉट हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी. उस केस में मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ. दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंज. अपार्ट फ्रॉम दिस, सेक्शन 111 वाज देयर, जिसमें कि एक नया सेक्शन सबसेक्शन 3 इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 50 में विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जो कि कहता है कि ITC हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, the registered person shall pay interest on such ITC wrongly availed and utilized at the rate not exceeding 24% as may be notified by the central government on the recommendation of council, and the interest will be calculated in manner as may be prescribed. The effective date of amendment जो थी इसकी वो 5 जुलाई रखी गई है इस चेंज की. मतलब जो सेक्शन 50 है जो इंटरेस्ट की बात करता है, उसके सबसेक्शन 3 में चेंज था जो फाइनेंस एक्ट 2020 का, जिसमें ITC रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज दोनों अगर आपने कर ली हैं तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट की रेट है वो 24% है. अब मैकेनिज्म किस तरह से रहेगा, इसको किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन यूटिलाइज्ड ITC एट 24%, अदरवाइज 18%. अगर आपने ITC को यूटिलाइज भी किया है अवेल के साथ, उन्हीं केस में 24% का आपको इंटरेस्ट देना है, अदरवाइज आपको 18% ही देना है. ITC would be considered as utilized if balance in electronic credit ledger falls below the quantum of ITC wrongly availed. The date of utilization of ITC in such cases would be deemed to be earlier of the due date of filing or actual date of filing of return. तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो आपका बैलेंस था क्रेडिट लेजर में, अगर वो फॉल करता है बिलो द क्वांटम ऑफ ITC रॉन्गली अवेल्ड, उस क्वांटम से उसको आप रिड्यूस करते हैं. तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट है 24% का यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है. तो अर्लियर ऑफ ड्यू डेट, आपने अगर रिटर्न को फाइल किया है अपनी एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग से, तो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग को माना जाएगा वो डेट जिस दिन आपने उसको यूटिलाइज कर लिया था. इफ ITC इज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड. इन ऑल अदर केसेस, इसके अलावा जितने भी केस होंगे, द डेट ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लीडिंग टू रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, इसके अलावा जिस दिन वो डेबिट हुआ होगा क्रेडिट लेजर से आपके, उसको मान लिया जाएगा रॉन्ग अवेलमेंट. या आपने DRC 3 से पे कर दिया, मान लीजिए कहीं पे आपने कुछ टैक्स पेमेंट करनी थी, आपने 3 से पे कर दिया, तो उस केस में वो जिस दिन डेबिट हुआ होगा उस दिन हम उसको डेट मान लेंगे. इट मींस अगर आपने यूटिलाइजेशन उसका रॉन्ग किया है और ड्यू डेट आपकी मान लीजिए 10 तारीख थी 3B की, आपने 10 की बजाय 15 को पे किया, अपना 3B जो था 3B 15 को फाइल किया, तो जो यूटिलाइजेशन की डेट है वो 15 नहीं होगी, वो आपकी ड्यू डेट मानी जाएगी. अर्लियर ऑफ ड्यू डेट और द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ डेट कहा गया. तो दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो होगा. अदरवाइज मतलब आपकी डेडलाइन जो है वो ड्यू डेट रहेगी, वहां से अदरवाइज क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी इंटरेस्ट की. उसके अलावा जो हमने मैनर को प्रिस्क्राइब किया, इस मैनर को डिफाइंड किया गया रूल 88B में. और उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्चुअल फाइलिंग की डेट है और ड्यू डेट है, उन दोनों में से जो अर्लियर होगा, तो अगर आप अपनी 3B को डिले भी करते हैं तो उससे आपके इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका इंटरेस्ट का मीटर तो ड्यू डेट से स्टार्ट हो जाएगा. अब उसके अलावा काफी सारे इश्यूज थे इन रिस्पेक्ट विद डिमांड और पेनल्टी के प्रोविजंस को लेकर, जो फेक इनवॉइसिंग में लगते हैं. केसेस के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से केस एंड CBIC का एक सर्कुलर जो उन्होंने डिफाइन किया 171, उनमें उन्होंने काफी सारे केसेस को बताया गया कि किस किस केस में किस किस तरह की पेनल्टी लगेगी. अगर मान लीजिए मिस्टर A इशूड टैक्स इनवॉइस टू B, जिसमें कि कोई सप्लाई नहीं थी, सिर्फ इनवॉइस दिया गया, तो एक्शन क्या लिया जाएगा? पेनल एक्शन A पे लिया जाएगा जिसने इनवॉइस दिया है. एज देयर इज नो सप्लाई नो प्रोसीडिंग्स फॉर डिमांड अंडर रिकवरी 73 और 74, सिर्फ सेक्शन 122(1)(2) की पेनल्टी लगेगी. और क्योंकि किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं है, तो कोई भी प्रोसीडिंग 73 और 74 में A के अगेंस्ट में नहीं ली जा सकती. अब B केस क्या कहता है? मिस्टर B जो है, उन्होंने रिसीव्स अ टैक्स इनवॉइस फ्रॉम मिस्टर A विदाउट एनी सप्लाई, एंड मिस्टर B इशूज
tax invoice against an underlying supply to its customer, Mr. B utilizes the ITC availed based on the fake invoice. अब proceedings जो होंगी वो B के against for recovery of incorrect ITC plus penalty under section 74 of CGST Act along with applicable interest initiate की जाएंगी. No separate penal proceedings will be initiated under section 122 बिकॉज जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑलरेडी 74 में जा चुकी है. अब इस केस में क्या हुआ था कि जो बी था उसने टैक्स इनवॉइस जो लिया था ए से, उसमें बी ने उसके आईटीसी को भी अवेल कर लिया. तो ए पे तो हम बात कर चुके हैं, जो ए था उस पे तो हम 122(1)(2) की पेनल्टी लगेगी क्योंकि उसने फेक इनवॉइस इशू किया. जो बी है, बी ने क्योंकि उसका आईटीसी भी ले लिया तो 74 की प्रोसीडिंग उस पे इनिशिएट होंगी रिकवरी की. अब जो मिस्टर बी है receives a tax invoice from Mr. A without underlying supply and Mr. B issues tax invoice without any underlying supplies to Mr. C. B ने A से लिया और B ने फिर आगे C को दे दिया टैक्स इनवॉइस, किसी भी तरह की कोई सप्लाई नहीं है, आईटीसी को पास ऑन किया गया. तो जो पीनल एक्शन है B के अगेंस्ट वो सिर्फ 122(1)(2) और 122(1)(6) के अगेंस्ट किया जाएगा. उसने इनवॉइस को एक्सेप्ट भी किया है, फेक इनवॉइस को, उसने इनवॉइस को आगे भी पास ऑन किया, उसने इनवॉइस इशू भी किया. तो दोनों तरह की पेनल्टीज पे लगेंगी. और ऑल्सो फॉर टेकिंग यूटिलाइजेशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि कोई भी सप्लाई इसमें प्रेजेंट नहीं थी, आईटीसी की बात भी नहीं की गई है, तो कोई भी प्रोसीडिंग 73 और 74 में अलग से इनिशिएट नहीं की जाएंगी. Now, applicability of Section 17 on ITC availed by recipients of supplies regarded as deemed export. तो जो deemed export के जो लोग थे, deemed export जो GST लॉ में डिफाइंड है, certain categories को अगर आप एक्सपोर्ट सब गुड सप्लाई करते हैं तो उसको deemed export कहा गया है. तो अगर आप मान लीजिए इस तरह की कोई सप्लाईज में है deemed export की as per Section 147, जो however these there were इसमें हम एम्बिग्यूटी किस बात की थी कि जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है अंडर सेक्शन 17, क्या उसकी भी एप्लीकेबिलिटी इन लोगों पे है. तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि डीम्ड एक्सपोर्ट जो करते हैं उनके लिए आईटीसी सिर्फ इसलिए रखा गया टर्म बिकॉज उनको रिफंड देना होता है. और जो सेक्शन 16, 17, 18 है, इनकी एप्लीकेबिलिटी तभी है क्योंकि बिकॉज उनको ताकि रिफंड प्रोसेस में कोई दिक्कत ना है. तो इनके लिए सिर्फ वर्ड है एक नेट आईटीसी. तो नेट जो आईटीसी है उसमें जो ब्लॉक क्रेडिट है वो अप्लाई नहीं होगा और वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेट आईटीसी में. ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है इसमें. देन उसके अलावा काफी सर्टेन क्लैरिफिकेशंस हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. और एक क्लैरिफिकेशन है सर्कुलर 172 की जो कहती है कि perquisites provided by the employer to employees in terms of contractual employment agreement will not subject to GST as it is in lieu of services provided in relation of employment. किसी भी तरह का कोई भी perquisite अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में अगर वो चीज लिखी हुई है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज जीएसटी लगेगा. क्योंकि उसको माना है अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के द्वारा या उसके अंतर्गत किसी को सर्विस दी गई है तो वो ये माना जाएगा कि हाँ ये वो उस एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में ही है. अब इसमें उन्होंने एक चीज क्लैरिफाई नहीं की, अगर मान लीजिए उसकी मैं रिकवरी भी कर रहा हूँ एट अ नॉमिनल प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स, इफ यू हैव सीन कैंटीन के चार्जेस या फिर कैब्स के चार्जेस एट नॉमिनल कॉस्ट कंपनीज रिकवर करती हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे एडवांस रूलिंग्स हैं जो कहती हैं कि ऐसी रिकवरीज पे जीएसटी लगेगा. लेकिन इस सर्कुलर में किसी भी तरह का कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, which we find is of no use because जो लिटिगेटिव पॉइंट है कैंटीन्स का कैब रिकवरी का उस पे ये सर्कुलर साइलेंट है. तो क्या ये मान लिया जाए कि उन रिकवरीज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा? तो ये बड़ा मतलब एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है. If a circular is for clarity or clarification and if that clarification is not stated very clearly in that circular, so it is very hard to assume that. इसके अलावा जो यूटिलाइजेशन है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का और कैश लेजर का, आप किस तरह से करेंगे उसको बताया गया है कि आप किस तरह की पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी तरह की पेमेंट कर सकते हैं. एंड लाइक
इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर है उससे आप इंटरेस्ट की, पेनल्टी की और फीस की पेमेंट नहीं कर सकते। और जो क्रेडिट लेजर है उससे आप जो एररनेस रिफंड आपको मिलता है आप उसकी पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं जो आपको कैश में मिला था। ओनली अमाउंट अवेलेबल इन द कैश लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग सच पेमेंट्स। ये इनको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा फिर इन्होंने एक चीज इस सर्कुलर में नहीं डाली, जो कि ये थी कि अगर आप प्री डिपॉजिट करते हैं कोई अपील फाइल करने से पहले, क्या आप वो उसको क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिसमें कि एक जजमेंट भी है जो कहता है कि काफी सारे जजमेंट्स हैं इनफैक्ट कि जो प्री डिपॉजिट की पेमेंट है वो क्रेडिट लेजर से की जा सकती है। सो इस चीज को लेकर लेकिन सर्कुलर में डिफाइंड नहीं है। सर्कुलर सिर्फ उन कुछ गिनी चुनी बातों पे डिस्कस करता है जैसे कि इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या फिर एरनेस रिफंड which you receive in a form of cash। उसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट चेंज की, वो है क्लैरिफिकेशन on issue of claiming refund under inverted duty structure where the supplier is supplying goods under some concessional notifications। जीएसटी में कई बार क्या होता है कि काफी सारी कंसेशनल नोटिफिकेशंस भी हैं। अगर आप सर्टेन कैटेगरीज जो हैं गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेज हैं, अगर आप उनको कुछ सप्लाईज करते हैं तो आपको कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपने वो गुड्स 18% टैक्स रेट पे खरीदे हो, लेकिन जब आपने सप्लाई किया अल्टीमेटली उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो 5%, 2%, 1% पे आपने उनको सप्लाई किया होगा। तो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि आपका। लेकिन जब हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड की बात करते हैं, दैट मींस जब आपके इनपुट की सप्लाईज पे जो टैक्स रेट है वो ज्यादा है और आपके आउटपुट टैक्स रेट पे टैक्स रेट कम है, उसमें आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि आपका आईटीसी अक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब लॉ के हिसाब से तो ये है, जो सर्कुलर है 135 वो ये कहता है अगर आपका इनवर्ड एचएसएन और आउटवर्ड एचएसएन सेम है, आपकी इनपुट और आउटपुट सप्लाई सेम है, तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। लेकिन अब जो ऐसे लोग थे जो कि ट्रेडिंग का ही काम करते हैं लेकिन वो कुछ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कंसेशनल रेट नोटिफिकेशंस के तहत गुड्स की सप्लाई करते हैं, उस केस में क्या बेनिफिट दिया जाएगा, कैसे बेनिफिट दिया जाएगा, उसको लेकर क्लैरिटी दी गई है कि ऐसी कंसेशनल सप्लाईज अंडर कंसेशनल नोटिफिकेशन ऐसे लोगों को भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड दिया जाएगा। इसके अलावा चेंज है पीएमटी 03A फॉर्म को प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको कोई भी रिफंड गलती से मिल गया है, डिपार्टमेंट की गलती हो, आपकी गलती हो, आपको कोई भी रिफंड सैंक्शन हुआ है या रूल 9610 के कॉन्ट्रावेंशन से अगर आपको कोई रिफंड मिला है, उस केस में आपको DRC 03 में इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ पैसा जमा कराकर ऑफिसर को कन्विंस करवाकर उनसे वही अमाउंट अपने क्रेडिट लेजर में करवा लेनी है जिसमें कि ऑफिसर जीएसटी पीएमटी 03A ऑर्डर इशू करेगा। प्रैक्टिकली क्या हो रहा था आज की डेट में, कोई भी एररनेस रिफंड जो ग्रांट किया गया है असेसी को ऑन द फॉल्ट ऑफ असेसी और ऑन द फॉल्ट ऑफ डिपार्टमेंट, देयर वाज नो मैकेनिज्म इन विच you pay back the amount and it gets automatically recredit in your bank account। तो ये मैकेनिज्म बड़ा हेल्पफुल है प्रैक्टिकली। देन इससे रिलेटेड ही काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्सपोर्ट में है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में काफी इलेक्ट्रिसिटी है जो एक्सपोर्ट की जाती है टू डिफरेंट कंट्रीज। उन केसेस में किस तरह से रिफंड क्लेम किया जाएगा और उसका प्रोसीजर डिफाइन किया गया, क्योंकि प्रैक्टिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे डिस्कशन का पार्ट में। उसके अलावा टर्नओवर लिमिट जो थी जीएसटीआर 9 की, उसको 2 करोड़ डिफाइन किया गया है। और इस 21-22 के लिए जो लेट फीस थी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एनुअल रिटर्न जो जीएसटीआर 4 था, उसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो लेट फीस है उसका वेवर होगा उसमें। and then extension of passing order under section 7310। तो अभी एक जो चेंज है हम जिसकी हम बात करेंगे वो है ऑफिसर के पास जो टाइम लिमिट होती है शोकॉज नोटिस इशू करने की या फिर ऑर्डर पास करने की, उसमें एक्सटेंशन किया गया। जैसा कि आप सबको पता है when कोविड फर्स्ट वेव के आउटब्रेक वाज देयर, तो सुप्रीम कोर्ट पास द ब्लैंकेट order in suo motu cognizance in which
the limitation, as per Limitation Act, the limitation was extended to a certain period. Now that benefit has been given in GST law also, for refund applications, for passing any order, for filing appeals. Like you have that limitation extension in that. Like if you have अगर आपका वो पीरियड उन 2 सालों में फॉल करता है तो आपको उतना पीरियड आपका ऐड नहीं होगा आपके उन 3 मंथ्स की कैलकुलेशन में. तो उस तरह की एक्सटेंशन प्रोवाइड दी गई है. तो उसी वही एक्सटेंशन सेम ऑफिसर को भी दी गई है. जैसे मान लीजिए 17-18 की जो एनुअल रिटर्न थी वो हमने फाइल की है 31 जनवरी 2020 को, उसकी ड्यू डेट थी. अब कोई भी जो ऑर्डर है 17-18 का, वो 3 इयर्स कहाँ से कैलकुलेट होते हैं शोकोज नोटिस इशू करने के लिए? वो होते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न. अगर मान लीजिए आपकी जो टाइम लिमिट है, जो 7310 की जो टाइम लिमिट है, वो 17-18 की एक्सटेंड करके कर दी गई है 30 सितंबर 2023. अब आज की डेट में जो ऑफिसर है उसके पास जो टाइम लिमिट है ऑर्डर को पास करने की, शोकोज नोटिस इशू करने की नहीं है, ऑर्डर को पास करने की जो टाइम लिमिट है वो हो गई है 30 सितंबर 2023 now. It has been provided that while computing the period of limitation for recovery of erroneous refund and filing refund application, the period between 1st March 2020 to 28th February 2022 shall be excluded. तो जब भी हम एररनेस रिफंड की रिकवरी की बात करेंगे या फिर रिफंड को फाइल करने की बात करेंगे, तो जो ये पीरियड है 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का, ये इंक्लूड हो जाएगा. देन जो इन्वर्टेड ड्यूटी का फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हुआ है कि जिसमें आज से पहले जो सर्विसेज है उसका कंपोनेंट हम लेते नहीं थे, उसका कंपोनेंट अभी भी नहीं लेंगे हम. काफी लोगों को लगता है कि जो चेंज हुआ है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में वो ये चेंज है कि हमें सर्विसेज का रिफंड भी मिल गया. सर्विसेज का रिफंड नहीं मिला उसमें. लेकिन जो हम नेट आईटीसी लेते थे, जो हम टैक्स को माइनस करते थे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड के फॉर्मूला से, तो उस टैक्स को जब हम माइनस करते थे तो उसमें वो कंपोनेंट भी था जिसमें हमने सर्विसेज का आईटीसी भी यूटिलाइज किया है उस टैक्स को पेमेंट करने के लिए. तो हम जब हम माइनस करेंगे तो हम वही सर्विसेज का प्रोपोर्शन उसमें से हटा देंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा अमाउंट जो होगा रिफंड का वो इंक्रीज होगा. इस तरह के चेंजेस हैं. उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, सस्पेंड हो गया है अगर आपका रजिस्ट्रेशन, और अगर आप सस्पेंशन भी इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने 3 या 6 मंथ से रिटर्न फाइल नहीं की थी, और इन दैट केस अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है अगर हम ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स की बात करें, जो MEIS स्कीम है, रॉड ऐप स्कीम है, जिसमें अगर कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है तो आपको एक स्क्रिप्ट्स मिलती हैं. गवर्नमेंट आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स देती है जिसका इस्तेमाल आप इंपोर्ट ड्यूटी को पे करने के लिए कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए कर सकते हैं. अदरवाइज आप उस स्क्रिप्ट को ओपन मार्केट में बेच भी सकते हैं. और गवर्नमेंट ने जो ये इस तरह की स्क्रिप्ट्स हैं इसको एग्जम्पशन कैटेगरी में रखा गया है. मतलब एक तरह से एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी गई है, जीरो रेट नील रेटेड गुड्स कह सकते हैं हम इनको. तो अगर मान लीजिए आप इस तरह की कोई सप्लाईज करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो क्रेडिट होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा. तो काफी सारे नोटिसेस आए थे एसएससीज को, तो अभी इन्होंने चेंज किया है कि जो एग्जम्प्टेड सप्लाईज की डेफिनेशन है आईटीसी रिवर्स करने के लिए, उसमें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. उस एग्जम्पशन टर्नओवर में इस तरह की सप्लाईज जो की गई हैं, चाहे ये नील रेटेड की थी, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. उसके अलावा ये PMT 03A से रिलेटेड चेंज है. एक और चेंज है जो कि है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है रूल 96 में इन केस ऑफ टैक्स पेयर्स एंड डिफॉल्ट. अब एक विंग है DG आर्म जो कि रिस्क एनालिसिस और डाटा माइनिंग का काम करती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है टैक्स ऑफिसर्स को. अगर मान लीजिए इनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं ये जो एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर है ये किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या किसी तरह का कोई रेड फ्लैग, वो लोग ऑफिसर को पास ऑन करते हैं. उस केस में क्या करते हैं लोग, जितने भी रिफंड होते हैं आपके, जो आपके शिपमेंट जा रहे हैं आपके ऑटोमेटिक रिफंड होते हैं, उस पर एक पॉज लगा दिया जाता है दैट आपको रिफंड नहीं मिलेंगे टिल द टाइम आपकी वेरिफिकेशन होगी. तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कस्टम
जो कस्टम डिपार्टमेंट है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, दैट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू द ऑटोमेटिक रिफंड्स। प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि काफी टाइम तक लोगों के रिफंड स्टक हो जाते थे। तो अभी उन्होंने क्या किया कि इस तरह के जो रिफंड होंगे जिसमें कि टैक्स पेयर इन डिफॉल्ट है, वो जितने भी रिफंड होंगे सारे ट्रांसफर किए जाएंगे आपके जुरिस्डिक्शनल जीएसटी ऑफिसर को, और वो उन लोगों को उस रिफंड को प्रोसेस करेगा आफ्टर वेरिफिकेशन। हो सकता है वो प्रीमाइस विजिट करे, आपके इनवॉइसेस की वेरिफिकेशन करे कि आपने जो ऑटोमेटिक रिफंड है जो आपने विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपने एक्सपोर्ट किया है वो किस तरह के आईटीसी को यूटिलाइज करके किया है, तो क्राइटेरिया वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटीआर फॉर्म 9 जो है उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो ये सारे चेंजेस जो थे, these were in respect with all the 47th काउंसिल मीटिंग के बाद के चेंजेस हैं। हमारे द्वारा यही एडवाइस किया गया है कि जो भी रेलेवेंट चेंज है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप उसको थोरोली स्टडी करें। उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से एप्रीहेंशंस आपकी, यू कंसल्ट टू योर कंसल्टेंट कि हाँ भी ये मेरे बिजनेस को कितना किस तरह से इम्पैक्ट करता है, या मुझे अपने बिजनेस को किस तरह से रीडिफाइन या रीडिजाइन करना चाहिए। सो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस तो हम वो ले सकते हैं। साहिल जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि जीएसटीआर 3B से रिलेटेड भी काफी चेंज है उसमें, डिस्क्लोजर से रिलेटेड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें सारी चीजों को अकाउंट फॉर करना बड़ा जरूरी है। तो आपकी अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू विच यू आर डूइंग द अकाउंटिंग। आपकी रिपोर्ट्स किस तरह से निकलती हैं, आपका 2B किस तरह से, आपकी फाइलिंग किस तरह से हो रही है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ रॉबस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एंड साहिल जी, यू प्लीज कंटिन्यू विद दैट। Thank you, Navjot ji, for the valuable inputs on the recent changes in GST. I'm sure that our audience would have got very insightful information. Now I will move to our next speaker. My colleague Rakesh Sharma is a business manager and has been associated with Tally for more than 3 years. He has got a lot of experience of Tally as a product and domain related experience as well. His areas of expertise include knowledge of GST domain and Tally product. He will be showcasing the functionalities of our product Tally Prime, which will be helpful in making your business operations across segments very simpler. Rakesh, over to you. Thank you, Sahil. I am audible? Yeah, you are audible. Okay, thank you. So, good evening, everyone. Welcome in Business Series event. Hope you are doing good and keeping safe with your dear ones. First of all, thanks to Navjot ji for sharing such insightful information on new GST updates. Okay, so I am sharing my screen. Sahil, please confirm my screen is visible. Yes, it's visible. Okay, thank you so much. So, without any further delay, we will move on today's topic. That how technology help to drive our business operations in well manner. So इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली ड्राइव करने में। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपके साथ आज हमारा एक नया सॉल्यूशन है, नया वर्क अराउंड है बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, जिसका नाम है टेली प्राइम ऑन AWS। तो टेली प्राइम ऑन AWS क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले मैं कुछ बिजनेस सिनेरियोज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेट्स सपोज कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज में उनकी ब्रांचेज होती हैं एंड वहाँ पे डेटा सेंट्रलाइज करने की रिक्वायरमेंट एसेट्स होती है। इसके अलावा ऑन द मूव मैं कहीं से भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज कर पाऊँ, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए इस सॉल्यूशन को बेसिकली ये हमारा इंटेंट है इस सॉल्यूशन को ड्राइव करने का। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम पिछले 2 साल में देखें ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा थी, वेरियस ऑफ कस्टमर्स से हमें कॉल्स मिले थे कि कैसे हम हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को ओवर द क्लाउड शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे क्लाउड की मदद से हम हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को ड्यूरिंग द कोविड जैसे रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम ऑफिसेज ओपन नहीं कर सकते, तो हम कैसे हम घर से मैनेज कर सकते हैं हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को। तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मीट आउट करने के लिए एंड जहाँ पे मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल ब्रांचेस का जो
बिजनेस कल्चर है, उस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए हम इस सॉल्यूशन को गो थ्रू करेंगे, विच नेम इज टेली प्राइम ऑन AWS। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट 2001 में हमने एक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था डेटा सिंक्रोनाइजेशन। सो डेटा सिंक्रोनाइजेशन इस फीचर की हेल्प से हम मल्टीपल लोकेशंस पे जहां भी हमारे बिजनेस ऑपरेशंस रन हो रहे हैं, अगर हमें डेटा सेंट्रलाइज करना है तो एक ब्रांच से सेकंड ब्रांच में डेटा कैसे सिंक करें, कैसे डेटा को सेंट्रलाइज करें। सो इस सॉल्यूशन की वजह से हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे थे। देन 2009 में हमने रिमोट एक्सेस का फीचर इंट्रोड्यूस किया, जहां पे हमारा एक जो एडमिन यूजर है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे है एंड किसी दूसरी लोकेशन से हमारा कोई यूजर अगर उसको एक्सेस करना चाह रहा है तो रिमोट एक्सेस के थ्रू इजीली हम यूज कर पा रहे थे। सेम इसी एरा में हमने 2019 में टेली रिपोर्ट इन ब्राउजर एक्सेस का फीचर इंट्रोड्यूस किया, जहां पे आप अपने बिजनेस के हिस्टोरिकल डेटा को ऑन द मूव कहीं भी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो तीनों सॉल्यूशंस की हम बात करें, वो तीनों सेफ एंड सिक्योर, आपका डेटा कहीं भी किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ड्राइव नहीं हो रहा, ये तीनों सेफ एंड सिक्योर सॉल्यूशंस हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि वर्चुअल यूजर ऑन द क्लाउड या वर्चुअल यूजर की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए जो हमारे वर्चुअल यूजर हैं उनके लिए। तो 2020 में TVU पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ एंड फाइनली 2021 में जो सॉल्यूशन जिसके बारे में हम आज डीप डाइव करेंगे, टेली प्राइम पावर्ड बाय AWS, इट्स रेडी टू यूज। सो आगे बढ़ते हैं, डीप डाइव करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, क्या क्या इसकी बेनिफिट्स हैं, क्या क्या यूटिलिटीज हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दो सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं। फर्स्ट इज, यहाँ पे आपको दो ब्राउजर दिख रहे हैं, फर्स्ट गूगल क्रोम एंड सफारी, एंड फर्स्ट आपको एक सेटअप दिखाई दे रहा है। सो जैसा कि इस पिक्चर से आप देख पा रहे हैं, सेम वैसे ही हम इस वर्क अराउंड को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेटअप के थ्रू एंड सेकेंड ब्राउजर के थ्रू। जो हमारा फिक्स्ड हमारी जो मशीन है जहाँ पे हम रेगुलर हमारी वर्किंग करते हैं, बिजनेस डेटा की एंट्रीज करते हैं, वो हमारा फिक्स सिस्टम हो गया, जहाँ पे हम इसको सेटअप इंस्टॉल करके वहां से यूजेस कर सकते हैं। सेकेंड, ब्राउजर के थ्रू ऑन द मूव, अगर मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ और ड्यूरिंग द ट्रेवल मुझे अपने बिजनेस डेटा को चेक करना है, कुछ नई एंट्रीज करनी है, कुछ वेरियस रिपोर्ट्स को एक्सेस करना है, एनालाइज करना है, तो ऑन द मूव थ्रू गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इवन मैक पे जो सफारी ब्राउजर होता है उसके थ्रू आप इजीली अपने बिजनेस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो ये सॉल्यूशन कैसे वर्क करेगा उसको हम नेक्स्ट स्लाइड से चेक करते हैं। सो इसमें टेली प्राइम पावर्ड बाय AWS। सो क्या क्या इसकी यूटिलिटीज है, क्या क्या बेनिफिट है। सो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं रिलायबिलिटी। सो मैं एज ए बिजनेस ओनर, मेरी सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट होगी, अपने बिजनेस डेटा को मैं कहीं भी प्लेस कर दूंगा क्या? सो बेसिकली नहीं है, मेरा बिजनेस डेटा ही मेरे बिजनेस की बैकबोन है। तो मेरा बिजनेस का जो डेटा है वो सिक्योर्ड हैंड्स में होना चाहिए। सो यहाँ पे रिलायबिलिटी का जो पार्ट है वो हम फेयरली प्ले कर रहे हैं। दो बड़े बिजनेस जायंट या दो बड़े बिजनेस ग्रुप टेली, जिनकी जो टेली एज ए हमारी कॉम्पिटेंसी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो जो MSME बिजनेस ओनर्स हैं, तो वहां पे हम सबसे एज पे हैं। एंड सेकंड, अमेजोन वेब सर्विसेज जो क्लाउड ऑपरेशंस पे एज पे हैं। तो दो बड़े बिजनेस जायंट, दो बड़े बिजनेस ग्रुप का कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी से लेके किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं मिलेगा। सेकंड, एवरीथिंग यू नीड इन वन प्लेस। सो इसका एक छोटा सा अगर हम फॉर एग्जांपल समझे, तो मैंने एक सॉल्यूशन लिया जहाँ पे मैं टेली सॉल्यूशन से हमारा अपने बिजनेस का अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया, एंड सेकंड उसको क्लाउड पे लेके जाने के लिए मुझे अमेजोन वेब सर्विसेज से मैंने एक क्लाउड स्पेस मैंने वहां से ऑप्ट किया। सो अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे टेली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए मैं टेली केयर पे कॉल कर रहा हूँ या टेली टीम से बात कर रहा हूँ, जो भी मेरे प्रेफर्ड पार्टनर उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड अगर मुझे अमेजोन वेब सर्विसेज जो क्लाउड ऑपरेशंस में यूज कर रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे अलग से अमेजोन के पास ना जाना पड़े या कोई थर्ड पार्टी वेंडर के पास मुझे उन चीजों के लिए नहीं जाना पड़े। सो इस सॉल्यूशन में हमने इस चीज को कवर किया है
कि सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्ट में जो भी क्वेरीज हैं टैली से रिलेटेड या क्लाउड सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो दोनों आपकी एक ही जगह से फुलफिल होंगे। तो आप डायरेक्टली टैली केयर पे कॉल करके या जो भी आप टैली टीम से आपके साथ कनेक्टेड हैं उनके साथ बात करके या जो भी आपके प्रेफर्ड पार्टनर, आप उनसे इजीली कनेक्ट करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको फुलफिल कर सकते हैं, उनको क्लोज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, सो हर बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास n नंबर ऑफ यूजर होते हैं, ड्यूरिंग द बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ हमारे यूजर्स इंक्रीज भी होते हैं, एंड इन सब सिचुएशंस हो सकता है कि मेरे जो यूजर्स हैं वो डाउन साइड भी आ रहे हो। तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग अपने यूजर्स को अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकता हूँ। तो जो सॉल्यूशन, जो वर्क अराउंड आपके लिए हमने तैयार किया, उसमें आप अपनी इस रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम जहां आपको फील होता है कि मेरे यूजर्स इंक्रीज होने चाहिए या मेरे को एडिशनल कुछ यूजर्स चाहिए या कुछ जो एडिशनल यूजर है वो प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को, तो मेरे यूजर्स हैं वो डाउन साइड होने चाहिए, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। प्रोसेसर एग्नोस्टिक, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसर एग्नोस्टिक से मतलब कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है इस सॉल्यूशन को यूज करने के लिए कि आपकी फ्ला रिक्वायरमेंट है कि आपकी इतनी जीबी रैम होना चाहिए, इतनी ये आपका पर्टिकुलर आपको इस तरह की मशीन ड्राइव करनी पड़ेगी i5 i7 या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसर या स्पेसिफिक कुछ सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इजीली अपने रेगुलर पीसी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सेटअप और थ्रू ब्राउजर। इकोनॉमिकल, सो डेफिनेटली गोइंग फर्दर हम इसके प्लान्स को समझेंगे एंड इसको हमने बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे हमारे कस्टमर्स को, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे इस सॉल्यूशन को हमने शेयर किया। सो सॉल्यूशन मेड फॉर यू। So what to expect from this solution? So as a business owner, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है? मैं कोई सॉल्यूशन ऑप्ट कर रहा हूँ एज ए क्लाउड सॉल्यूशन, सो हम कुछ जो एक्सपेक्टेशन है उनको जज करेंगे। सो ए प्राइवेट वर्चुअल मशीन विद कंप्यूटर्स फॉर ईच कस्टमर। सो मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए एक इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन एलोकेट होगा इसमें। सो एज ए कस्टमर मेरी रिक्वायरमेंट एक समझ आती है कि मेरा जो डेटा है, मेरा जो बिजनेस डेटा है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेक पे नहीं होना चाहिए, थ्रेट नहीं होना चाहिए मेरे बिजनेस डेटा को। सो क्या मेरे को एक प्राइवेट मशीन अलॉट हो रही है या फिर किसी कॉमन मशीन पे जहाँ पे अदर कस्टमर्स का भी डेटा, वहीं पे मेरा डेटा भी डिप्लॉय हो रहा है, और कहीं कल को कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो ऐसा मेरा डेटा स्टेक पे तो नहीं है, थ्रेट में तो नहीं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कस्टमर को इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन एलोकेट करेंगे जहाँ पे इस तरह की किसी तरह, जहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज को लेके कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इजी मूवमेंट फ्रॉम ऑन प्रेमिस टू ऑनलाइन। सो गोइंग फर्दर हम इस सॉल्यूशन को वॉक थ्रू करेंगे जहाँ पे आप देख पाएंगे कि बहुत ही इजी है, सिंपल है एंड बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस है ऑन प्रेमिस टू ऑनलाइन मूव होने के लिए। Secured access computer using Tele.authentication and secure PIN. So जो मेरा बिजनेस डेटा है क्या वो सिक्योर्ड है? सिक्योरिटी को लेके किसी तरह का कोई थ्रेट तो मुझे नहीं सामने आ रहा। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमने एक एडिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एक सिक्योर पिन इंट्रोड्यूस किया है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल सिक्योरिटी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया विच नेम इज सिक्योर पिन। सो जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका जो टैली का .NET आईडी है, .NET पासवर्ड रहेगा एंड एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे हमने सिक्योर पिन इसमें इंट्रोड्यूस किया है जो क्लाउड पे आपके डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। हाई अवेलेबिलिटी ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जैसा कि हमने पहले बात की कि दो बड़े बिजनेस ग्रुप्स, तो AWS का जो क्लाउड सॉल्यूशंस है वहाँ पे आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है, जो अगर इन एनी केस जो उनका जो AWS का फ्रंट जो सॉल्यूशन है, अगर वहां पे कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उनका जो बैकअप सपोर्ट है वो इतना परफेक्ट, इतना साउंड है कि विदिन माइक्रो सेकंड्स वो बैकअप जो है रेडी हो जाता है। एंड एज ए कस्टमर मुझे ऐसा एहसास भी नहीं होता है कि कुछ ऐसा टेक्निकल ग्लिच
हुआ है कि जिसकी वजह से मेरी रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो हैम्पर हो रहे हैं। सो विद इन माइक्रो सेकेंड्स वहाँ पे बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल बैकअप स्पेस एंड ऑटो बैकअप ऑफ कस्टमर डेटा। सो क्या मेरा डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहेगा? एंड सो डेफिनेटली इस सॉल्यूशन में जब हम प्रोडक्ट गो थ्रू करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जब भी आप मशीन को रन कर रहे हैं, जब भी मशीन को शट डाउन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं आप अपने वर्चुअल मशीन से, सो स्टार्टिंग टाइम पे एंड लॉग आउट टाइम पे, दोनों टाइम पे आपका जो बैकअप है वो ऑटोमेटिक रहेगा। एंड इन द मीन टाइम अगर आपको लगता है कि मुझे मैनुअल बैकअप की भी रिक्वायरमेंट है, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप मैनुअल बैकअप भी जनरेट कर सकते हैं। मैनेज कंप्यूटर एंड यूजर फ्रॉम ए सिंपल वेब पोर्टल। सो एक सिंपल वेब पोर्टल से हम हमारे यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। जो मेरे यूजर्स हैं, लेट्स सपोज कितने यूजर्स मेरे एक्टिव होने चाहिए, कितने यूजर मेरे इनएक्टिव होने चाहिए, किस यूजर को क्या राइट्स मुझे देने हैं, एडमिन यूजर कौन रहेगा, स्टैंडर्ड यूजर कौन रहेगा, तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम सिंपल वेब पोर्टल से मैनेज कर सकते हैं। So some questions which you may have related to virtual machine. So as a customer मेरे कुछ questions हो सकते हैं। So first of all हम कुछ queries चेक करते हैं। So there is enough infra space to all my stuff. So हम cloud operations की बात कर रहे हैं, cloud operations पे हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो यूजर्स हैं उनको इनफ स्पेस मिलेगा। जो मेरा ऑटो बैकअप की आप बात कर रहे हैं, तो ऑटो बैकअप मेरा इजीली वहाँ पे रेज होता रहेगा, जनरेट होता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि पुराना बैकअप मेरा रेज हो रहा है, नया बैकअप जनरेट हो रहा है, पुराना बैकअप जो है वो उसी को रीराइट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूजर वाइज जो भी प्लान हम ऑप्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनफ स्पेस वहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपके बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। So is the access to virtual system secure? So definitely ये Linux based ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसमें यूज किया है, जहाँ पे अगर हम बात करें थ्रेड्स की तो वो बहुत ही मिनिमल होते हैं। एंड जो आपको एक वर्चुअल मशीन एलोकेट की जाती है वो इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन होती है, उसमें किसी और कस्टमर्स का डेटा शेयरिंग नहीं होता। पर कस्टमर एक नया उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया वर्चुअल मशीन एलोकेट होता है, तो सिक्योरिटी को लेके किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हमने ना ही किसी पुरानी रिलीज में या ना ही जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है टेलीम टाइम वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एंड गोइंग फर्दर जो भी हमारे न्यू इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जो नए सॉल्यूशंस आएंगे, वहां पे भी सिक्योरिटी को लेके ऐसे हमने हमेशा ही सिक्योरिटी को सबसे टॉप पे रखा है, एज पे रखा है, ताकि हमारे कस्टमर्स का डेटा गलत हाथों में ना जाए। एंड एज ए कस्टमर मेरा भी एक बिजनेस के प्रति दायित्व है कि मैं अपने बिजनेस डेटा को जितना हो सकता है सिक्योर हैंड्स में रखूं। So how do I ensure the infra resources taken is neither over virtualized or underutilized? So जो मेरा इंफ्रा स्पेस है या फिर जिस सॉल्यूशन को माउंट करने जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि जो मेरे यूजर्स हैं वो इसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं या ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर्स या फिर जो इंफ्रा हम ऑप्ट कर रहे हैं उसको अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो इज माय डेटा गेटिंग बैक्ड अप रेगुलरली? सो डेफिनेटली जब भी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे एंड जब भी हम शट डाउन लॉग आउट करते हैं हमारी मशीन से, वर्चुअल मशीन से, तो ऑटो बैकअप वहाँ पे रहेगा, मैनुअल बैकअप का ऑप्शन भी वहाँ पे रहेगा, जिसको आप एनी टाइम सर्कुलेट कर सकते हैं। सो विल माय टीम गेट प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट? सो डेफिनेटली वन सिंगल पॉइंट पे आपको टैली से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है या फिर Amazon क्लाउड ऑपरेशंस जिसके साथ वहां से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो सिंगल पॉइंट पे आपको आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। एंड जो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वर्चुअल सिस्टम पे वो डेफिनेटली स्मूथ रहने वाला है। गोइंग थ्रू हम इस प्रोडक्ट का वॉक थ्रू करेंगे। सो डायरेक्टली विदाउट एनी फर्दर डिले सॉल्यूशन वॉक थ्रू पे मूव करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जब आप इस सॉल्यूशन को ऑप्ट करते हैं तो इसको दो तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट सेटअप के थ्रू एंड सेकंड ब्राउजर के थ्रू। सो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में हम सेटअप का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि सेटअप कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे हम ऑन प्रेमिस से थ्रू वर्चुअल स्पेस पे कैसे मूव करेंगे, एंड विद इन कपल ऑफ मिनट्स हम मतलब इजीली इस पे मूव कर सकते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं तो सबसे पहले इसके लिए हमें हमारा जो भी प्रेफर्ड पार्टनर है या जिस भी टैली टीम मेंबर के साथ हम एंगेज हैं उनके साथ हमारी रिक्वायरमेंट को शेयर करना है। वी एज ए टैली आपकी रिक्वायरमेंट को जज करेंगे एंड फाइनलाइज करेंगे आपके लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो सोल्यूशन ऑप्ट करने के बाद इस तरह से आपको एक मेल मिलेगा। इस मेल में आपके आपके जो सॉल्यूशन आपने ऑप्ट किया उसके बारे में सारी डिटेल्स रहेंगी। आपका tally.net आईडी मेंशन रहेगा। tally.net पासवर्ड ऑलरेडी आपका क्रिएटेड होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। एंड सिक्योर पिन, जो मेल आपको मिलेगा उसमें सिक्योर पिन मेंशन रहेगा। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जो सेटअप है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डाउनलोड सेटअप फाइल फ्रॉम हियर। सो वंस आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, सो यहाँ पे से मैं अपनी सेटअप को डाउनलोड कर सकता हूँ। ये 40 MB का फर्स्ट सॉल्यूशन है एंड 110 MB। तो फुल इंस्टॉलर हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है। वंस आई क्लिक ऑन फुल इंस्टॉलर, देन इस तरह से एक सेटअप exe फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। सो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में डाउनलोड है, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पोर्टल पे चलते हैं। सो ये जो सेटअप का गेटवे रहेगा, स्टार्टिंग स्क्रीन इस तरह से आपके सामने विजिबल होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना .NET आईडी इन करना है। .NET आईडी के बाद आपका जो .NET पासवर्ड रहेगा वो एंटर करना है। देन जो सिक्योर पिन रहेगा, so once I click all three details, my virtual machine is ready to use. So connect now. एंड आप देख पा रहे हैं विद इन सम टाइम मेरा जो वर्चुअल कंप्यूटर है वो ओपन हो गया है एंड यहाँ पे जो डेटा है वो रेडी टू यूज है। सो यहाँ पे ऑलरेडी जब हम इस मशीन को ऑप्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे, so मैं टैली को एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्क डी, जहाँ पे हमारे EXEs है या फिर जो हमारा डेटा स्टोरेज है वो यहाँ पे रहेगा। एंड टैली प्राइम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैली प्राइम सर्वर, अगर आप यूज करते हैं टैली प्राइम सर्वर के कस्टमर है तो टैली प्राइम सर्वर की EXE हम इंस्टॉल कर सकते हैं। टैली प्राइम एडिट लॉग या फिर जो भी नए रिलीजेस हैं, जो भी नए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी नए रिलीज है उनकी EXEs हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो वन बाय वन सारे जो फीचर्स हैं, यहाँ पे जो फीचर्स हमने दिए हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर रोज में आपको सबसे पहला जो सबसे पहला फीचर मिलता है वो है स्टोरेज का। सो स्टोरेज, इस फीचर को यूज करके हम हमारे वर्चुअल मशीन पे, फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन पे डेटा को मूव करेंगे। सो यहाँ पे मुझे 3 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है माई एप्लीकेशंस, सेकंड माई फाइल्स एंड देन शेयर डेटा। सो माई एप्लीकेशंस में मेरा जो भी सॉल्यूशन मैं यूज कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जो EXEs है, जो सॉफ्टवेयर EXEs है वो यहाँ पे इंस्टॉल रहेंगी। सेकंड है माई फाइल्स। माई फाइल्स में वो डेटा मेरा स्टोर रहेगा जो मैं सिर्फ पर्टिकुलर अपने एज ए लेट्स सपोज मुझे अपने यूज के लिए रखना है, मुझे अपने जो को यूजर्स हैं उनके साथ शेयर नहीं करना है, तो वो डेटा मैं माई फाइल्स फोल्डर में रखूंगा। एंड थर्ड है शेयर डेटा। शेयर डेटा जहाँ पे अगर मैं मल्टीपल यूजर एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ तो शेयर डेटा फोल्डर में मैं वो डेटा पेस्ट करूंगा जो मुझे अपने यूजर्स के साथ, जो को यूजर्स हैं उनके साथ शेयर करना है। सो मैं यहाँ पे माई फाइल्स में कुछ डेटा ऐड करके यहाँ पे देखते हैं। सो फर्स्ट फोल्डर, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ या बाय डिफॉल्ट किसी एग्जिस्टिंग फोल्डर में भी आप डेटा शेयर कर सकते हैं। सो ताकि इसके नाम से फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करें एंड मुझे इस फोल्डर में कुछ डेटा अपलोड करना है। सो अपलोड फाइल्स, मल्टीपल कंपनीज हैं जो जिप फोल्डर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो जब भी हम किसी टैली फोल्डर को या किसी भी डेटा को हम फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन पे मूव करते हैं तो एक फोल्डर में मल्टीपल डेटा फाइल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम उस फोल्डर को जिप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड जिप करने के बाद उस डेटा को ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करने के लिए कमांड दिया तो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन मुझे मिला है एंड इट सेज के यहाँ पे डेटा मेरा ऑलरेडी
ऐड हो गया है इस कमांड को प्रेस करने से। ओके, सो मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे आता हूँ और चेक करता हूँ यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। एंड डेटा पाथ में मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे जिस डेटा पे मैंने अपने डेटा को स्टोर किया है वो डेटा पाथ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव एंड डी माय फाइल्स। तो इस डेटा को पहले मुझे रिस्टोर करना होगा। ये जिप फॉर्म में था। 1 second. So yes, so data is ready to use now. बस जो पाथ, जिस पाथ पे हमने डेटा को स्टोर किया है वो पाथ मुझे असाइन करना है। One second. So यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेटा रेडी टू यूज है एंड इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन में हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी रेजोल्यूशन को ऑप्ट करना चाहते हैं उस रेजोल्यूशन को यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। एंड स्ट्रीमिंग मोड में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस्ट रिस्पॉन्सिव एंड बेस्ट क्वालिटी दोनों ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो बेस्ट रिस्पॉन्सिव में अगर थोड़ा इंटरनेट का लैग है, कहीं कुछ इश्यू अगर हो रहा है तो आप बेस्ट रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर बेस्ट क्वालिटी पे आप चेक करना चाहते हैं तो दोनों को ही ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं वंस यू प्रेस इन जूम इन बटन। एंड जैसे आप एस्केप बटन को करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है जूम आउट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अबाउट डीसीवी कि आपका कौन सा प्लान है, उसका वर्जन कौन सा है, आपके प्लान के बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ से मैं अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर हम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम करते हैं और मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ तो जो भी यूजर यहाँ से डिस्कनेक्ट करता है वो उस वर्चुअल मशीन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड बॉटम साइड कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, सो बॉटम साइड पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एसेसरीज, जहाँ पे हमें कैलकुलेटर, इमेज व्यूअर, माउस पैड, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। इंटरनेट वर्चुअल मशीन में ऑलरेडी हम यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर आप यहीं से अपनी जीएसटी रिटर्न्स या कंप्लायंस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना चाहते हैं थ्रू ब्राउजर तो आप इजीली यहाँ पे ब्राउजर यूज कर सकते हैं। ऑफिस यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिब्रे ऑफिस मिलेगा। लिब्रे ऑफिस कैसे वर्क करेगा वो हम देखते हैं। तो लेट्स सपोज किसी भी कंपनी को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। क्लाइंट कंपनी, सो डेटा माइग्रेट हो गया है। अब मैं कैसे ऑफिस यूज करूंगा लिब्रे ऑफिस, सो उसके लिए लेट्स सपोज हम किसी भी रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। सो अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ओपन किया है एंड मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करके यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में लेट्स सपोज एक्सेल रखता हूँ एंड सेंड ऑन। सो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है मेरी, ये लिब्रे ऑफिस में ओपन हो रही है एंड इसको मैं इजीली सेम लाइक एक्सेल की तरह यूज कर सकता हूँ। एंड वंस अगर मैंने इस रिपोर्ट को लिब्रे ऑफिस में यूज किया है और उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को अपनी वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन पर ट्रांसफर करता हूँ और वहाँ पे एक्सेल में इस रिपोर्ट को ओपन करता हूँ, तो मतलब वहाँ पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा कि पहले वर्चुअल या लिब्रे मशीन में ओपन इसका एक्सटेंशन वगैरह को लेके किसी भी तरह का
कोई इश्यू नहीं आएगा। सेम अगर आप किसी रिपोर्ट को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज मैं एक रिपोर्ट प्रिंट करने की सो मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड प्रेस किया, तो जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, लेट सपोज आप ब्राउजर से यूज कर रहे हैं और किसी अदर नेटवर्क पे हैं जहाँ पे जो अपने ऑफिस पे नहीं है, और उस पर्टिकुलर मशीन पे जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा, तो वर्चुअल मशीन उस प्रिंटर को कैच करेगा एंड आप वहीं से अपने प्रिंट की कमांड देके जो भी प्रिंटर रेडी टू अवेलेबल होगा वहां से आप अपने प्रिंट कमांड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा अभी सिस्टम जिस सिस्टम से मैं यूज कर पा हूँ, यहाँ पे HP LaserJet MFP 225 करके प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसी प्रिंटर से अपने प्रिंट की कमांड को इनिशिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले मैं उस डॉक्यूमेंट को अपने वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन पे मूव करूंगा और वहां से उस प्रिंट कमांड को इनिशिएट करूंगा। सो आप डायरेक्टली अपने वर्चुअल मशीन से ही प्रिंट की कमांड को इनिशिएट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर मशीन के साथ जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, जो भी प्रिंटर उसके साथ शेयरिंग में है, वहीं से आपका प्रिंटर इनिशिएट हो जाएगा। सो इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड वर्चुअल मशीन का जो यूजेज है वो कितना आप यूज कर पा रहे हैं, कितना यूज आपने किया है। हम बात कर रहे थे कि ओवर यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन, तो उसको आप इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सो सेटअप पार्ट के बाद हम ब्राउजर पार्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। सो अभी मैंने अपने सब सेटअप से मैं लॉग आउट हो चुका हूँ एंड जो सेकंड प्रोडक्ट वॉक थ्रू है जिसमें हम हमारे ब्राउजर पे मूव करेंगे एंड ब्राउजर पे हमने बात कर सेल्फ सर्विस पोर्टल। सो सेल्फ सर्विस पोर्टल क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम हमारे यूजर्स को मैनेज कर पाएंगे, कैसे उनको एक्टिव इनएक्टिव या फिर नए यूजर्स को क्रिएट करना है, ये सारी जो रिक्वायरमेंट है उनको कैसे मीट आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉग इन करता हूँ ब्राउजर पे। सो ब्राउजर पे मुझे सिर्फ सिंपली टाइप करना है, एक लिंक है जो जो मेल आपको वेलकम मेल मिलेगा elcom.digital से, वहां पे जो ब्राउजर का लिंक है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन रहेगा एंड इजीली आप यहाँ पे ssp.elcom.digital पे विजिट करके होम पेज पे आप विजिट करेंगे एंड यहाँ पे आपको आपका टेली.net ID राइट करना है, टेली.net पासवर्ड एंड सिक्योर पिन। अगर सिक्योर पिन कहीं मिस होता है या फिर आप अपना .net पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो इजीली आप यहीं से रीसेट सिक्योर पिन या रीसेट पासवर्ड की कमांड को यूज करके आप इजीली अपने सिक्योर पिन एंड जो .net पासवर्ड उनको रीसेट कर सकते हैं। सो जैसे ही मेरा वेब पोर्टल लॉगिन होता है, यहाँ पे जो मेरा क्लाउड लाइसेंस है, जो क्लाउड का जो सॉल्यूशन मैंने ऑप्ट किया उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे विजिबल है। सो प्लान क्या है, वैलिडिटी कब तक है, यूजर रोल मैंने लॉगिन किया है तो मेरा रोल यहाँ पे क्या है डिफाइन हो रहा है एंड उसका स्टेटस क्या है वर्चुअल मशीन का, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो ओपन वर्चुअल कंप्यूटर, जैसे मैं इस फीचर को पे करता हूँ यहाँ पे, तो जो मेरी वर्चुअल मशीन है वो सेम लाइक सेटअप के जैसे यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे एंड इजीली मैं ब्राउजर से अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूँ। जो भी मेरी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है उनको पास कर सकता हूँ। सो जैसा कि हम सेटअप में देख पा रहे हैं, सेम इंटरफेस, सेम मतलब वर्क अराउंड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इजीली हम ब्राउजर से यूज कर सकते हैं। एंड अदर जो सेल्फ सर्विस पोर्टल के बारे में हम बात कर रहे थे, सो यहाँ पे सबसे पहले रीस्टार्ट का बटन है, शट डाउन
लेट्स सपोज कि हमने वर्चुअल मशीन ओपन किया एंड किसी भी वजह से मैं अपनी मशीन को रीस्टार्ट करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली आप यहाँ से कमांड देके वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। मैनेज यूजर्स पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे यूजर्स को मैनेज करेंगे। सो जितने भी वर्चुअल मशीन का प्लान हम ऑप्ट करते हैं उतने एक्टिव यूजर हम सेम टाइम पे एक्टिव रख सकते हैं। बट इन एनी केस कि हमें नए यूजर की रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज मेरे बिजनेस ऑपरेशंस में जो मेरे ऑडिटर हैं, जो मेरे अकाउंट्स टीम है, वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, तो मुझे किसी स्पेसिफिक टाइम पे उनको एक्सेस देना होता है, तो मैं उनको किसी पर्टिकुलर टाइम पे इनएक्टिव मोड में ऐड कर सकता हूँ। इजीली हम यहाँ पे यूजर्स बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एंड ये स्टैंडर्ड यूजर रहेगा या एडमिनिस्ट्रेशन यूजर रहेगा, तो जो भी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम उसको स्टैंडर्ड यूजर के थ्रू ही एक्टिव करते हैं, ऐड करते हैं। और अभी रिसेंटली मैं इसको इनएक्टिव मोड में ऐड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐड यूजर पे क्लिक किया, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरा एक यूजर ऐड हो गया, बट अभी वो इनएक्टिव है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में मुझे इस यूजर को एक्टिव करना है, तो मुझे अपने सेल्फ सर्विस पोर्टल पे आना है, मैनेज यूजर्स, इस पर्टिकुलर ऑप्शंस पे विजिट करके मैं अपने यूजर्स को एक्टिव इनएक्टिव कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हैं, तो किसी भी यूजर को हमें एक्टिव इनएक्टिव करना है, सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट। अगर यहाँ पे एक्टिव की जगह इनएक्टिव करना, तो डेफिनेटली आप सेम टाइम पे एक्टिव कर सकते, इनएक्टिव कर सकते हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर को, तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप डिलीट कर। सो नेक्स्ट फीचर पे मूव करते हैं, अपडेट टैली प्राइम। यहाँ पे जो भी हमारी टैली से रिलेटेड नई अपडेट, नई रिलीजेस होंगी, उनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिजिकल मशीन पे जो हमारा लैन वर्क अराउंड है, वहां पे अगर हमें अपनी नई रिलीज को अपडेट करना है, तो जितने भी सिस्टम्स है, हर सिस्टम पे हमें टैली प्राइम को अपडेट करना रहता है। बट इन वर्चुअल क्लाउड पे अगर आपने एक सिस्टम पे अपने रिलीज को अपडेट कर दिया, तो जितने भी हमारे यूजर्स हैं सबके यहाँ पे रिलीज अपडेट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैनेज बैकअप, हम बात कर रहे थे कि ऑटोमेटिक बैकअप रहेगा जब भी आप मशीन को स्टार्ट करेंगे, जब भी आप मशीन को शट डाउन करेंगे। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब भी हम इस मशीन को स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे, सेम टाइम पे यहाँ पे बैकअप जनरेट होता रहेगा। एंड बैकअप नाउ पे क्लिक करके हम यहाँ पे जो मैनुअल बैकअप है वो भी जनरेट कर सकते हैं। सो जो भी मेरे वर्चुअल कंप्यूटर पे जितना भी डेटा है, जिस भी फोल्डर में, उन सभी का बैकअप जनरेट हो जाएगा यहाँ। एंड लास्ट ऑप्शन, मैनेज शटडाउन शेड्यूल। सो इस फीचर को यूज करके जो प्लान मैं आउट करता हूँ, जितने भी यूजेस मुझे इन अ मंथ मिलती हैं, मैं उनको मैनेज कर सकता हूँ यहाँ से। सो लेट्स सपोज कि मैं मेरे ऑफिस का टाइम, मेरा ऑफिस टाइम है 9 AM टू 6 PM। तो 9 AM पे मेरा मशीन रन होता है एंड 6 PM पे मेरा मशीन शट डाउन मुझे करना है, लेट्स सपोज। तो फर्स्ट शट डाउन मैं यहाँ पे 6 PM मैनेज कर सकता हूँ, या जो बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग जो शेड्यूल शट डाउन हमने आउट किया है उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 6 PM कर देते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर बियॉन्ड 6 PM भी मेरी वर्किंग रन रहती है, कुछ पर्टिकुलर यूजर्स हैं जो 7 PM या 8 PM तक वर्किंग करते हैं मेरे ऑफिस में, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करूंगा, जहाँ पे क्लियरली मेंशन है अलाउ यूजर टू डिले शट डाउन बाय 1 आवर। तो लेट्स सपोज मैं एज ए यूजर काम कर रहा हूँ और 6 PM शट डाउन टाइम मैंने शेड्यूल किया है, तो इन बिटवीन एक पॉपअप रेज होगा कि ये मशीन इस पर्टिकुलर टाइम पे शट डाउन होने वाली है, क्या इसके बियॉन्ड भी आप वर्किंग करना चाह रहे हैं या फिर आपकी वर्किंग यहीं पे स्टॉप है। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, तो जो मेरा एक्सटेंशन है वो नेक्स्ट 1 आवर के लिए, मेरा वर्चुअल मशीन पे जो वर्किंग है नेक्स्ट 1 आवर के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट 1 आवर में इजीली काम कर सकता हूँ, मेरा मशीन जो है वो शट डाउन नहीं होगा। सो ये इन फीचर्स को यूज करके हम इजीली हमारे जो यूजर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं कि किस यूजर को इनएक्टिव मोड में रखना है, किस यूजर को एक्टिव मोड में रखना है। एंड ऑल द जो रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए, वो सारी यहाँ से फुलफिल होती है। एंड
एंड इजीली हम यहाँ से ओपन वर्चुअल कंप्यूटर जैसे मैंने किया, तो जो मेरा वर्चुअल मशीन है वो ब्राउजर के थ्रू कैसे रन होगा वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंड जो सेम वे जहाँ जैसे हम सेटअप पे यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, सेम फैशन सेम वे में हम अपने रिक्वायरमेंट्स को थ्रू ब्राउजर के मैनेज कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट वॉक थ्रू हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया। सो नेक्स्ट पीपीटी में कुछ स्लाइड्स को गो थ्रू करते हैं। सो इसको यूज करने के लिए सो ऑलरेडी इन स्लाइड्स को हम प्रोडक्ट वॉक थ्रू में डीप डाइव कर चुके हैं इस सॉल्यूशन के बारे में। सो कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं। सो लॉगिन एंड स्टार्ट टाइम। सो वंस फर्स्ट जो यूजर रहेगा जो मेरा इस मशीन को लॉगिन करेगा, वहां पे इट विल टेक अप्रोक्स 5 मिनट्स, क्योंकि जो आपका जो इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन है वहां पे ऑटो बैकअप जनरेट होता है एंड वो मशीन रेडी टू यूज होती है। तो उसमें फर्स्ट टाइम हायर साइड 5 मिनट हमने यहाँ पे मेंशन किया, बट 2 to 3 मिनट्स हो सकता है आपको वेट करना पड़े फर्स्ट यूजर को। और ऐसा नहीं कि एडमिन यूजर से ही यूज करना, आपका कोई यूजर भी इसको मशीन को स्टार्ट कर सकता है। एंड जो ऑटोमेटिक शटडाउन, जो शेड्यूल शटडाउन के साथ एक शटडाउन आपका ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रहेगा जो 9 PM पे रहेगा। एंड जब भी शटडाउन होगा मशीन, उससे प्रियोर 15 मिनट्स पहले आपको एक पॉपअप रेज होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका मशीन शटडाउन होगा। सो उससे पहले आपकी जो भी पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो पेंडिंग वर्किंग्स है, आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। सो एक पॉपअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से ये पॉपअप राइज होगा, कंप्यूटर विल शट डाउन एट 12:30 AM। सो प्री रिक्विजिट क्या है इस सॉल्यूशन को ऑप्ट करने के लिए? सो टैली प्राइम 2.0 और हायर आर सपोर्टेड। सो जो टैली प्राइम का रिलीज है 2.0 और उससे लेटेस्ट रिलीज 2.1 अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इस सॉल्यूशन को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड कस्टमाइजेशन सपोर्ट में हम बात करें, TDL TCP कस्टमाइजेशन आर सपोर्टेड, बट जो थर्ड पार्टी EXEs हैं, DLLS है, ये अभी इस पे सपोर्टेड नहीं है। एंड किसी भी ब्राउजर के थ्रू हम इस सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं, चाहे वो मैक यूजर्स के लिए सफारी ब्राउजर है, चाहे वो विंडो यूजर के लिए गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। प्रोविजनिंग कैसे रहेगा? सबसे पहले इस सॉल्यूशन को ऑप्ट करने के लिए आपको अपने प्रेफर्ड पार्टनर्स को रीच करना है। आपके प्रेफर्ड पार्टनर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो प्लान आपको सजेस्ट करेंगे, एंड उस प्लान पे जब आप ओके करते हैं तो वो आपके पार्टनर कस्टमर पोर्टल से एक रिक्वेस्ट रेज होगा कि ये वर्चुअल मशीन हम ऑप्ट करना चाहते हैं। देन पार्टनर उस पे आगे उसको प्रोक्योरमेंट के लिए आपको हेल्प करेगा। एंड जैसे ही आपका प्रोडक्ट ये सॉल्यूशन का प्रोक्योरमेंट होता है तो आपके पास एक वेलकम मेल होगा telcom.com से। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होम पेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे किस पर्टिकुलर लिंक से आप सेटअप डाउनलोड करेंगे और कहाँ से आप ब्राउजर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। जो प्लान्स हैं वो सिंगल यूजर से लेके 32 यूजर तक अवेलेबल है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी प्लान पे आप फॉल करते हैं, जो उसके लिए हम अपने प्रेफर्ड पार्टनर को कनेक्ट करेंगे। एंड AWS के बाद जो एक फाइनल पॉइंट है जिसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, लाइक अपग्रेड योर बिजनेस विद एक्टिव TSS रिन्यूअल। सो अगर हमारा TSS रिन्यूअल एक्टिव है, हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, तो क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेव व्यू रिपोर्ट से हम हमारी रिपोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड उनको सेव कर सकते हैं फॉर फर्दर यूजर्स। बिजनेस रिपोर्ट्स ऑनलाइन, टेली रिपोर्ट इन ब्राउजर एक्सेस के फीचर को जैसा कि हम देख पा रहे थे 2019 में इंट्रोड्यूस किया है। उसके साथ आप अपने हिस्टोरिकल डेटा को ऑन द मूव कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ब्राउजर। जो भी नए अपडेट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स हैं, जो भी न्यू रिलीजेस हैं, आप उनको सेम टाइम पे ऑप्ट कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस सर्विसेज 24/7 यूज करने के लिए हमारा जो TSS है वो एक्टिव होना चाहिए। एंड अगर हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, हमारे मल्टीपल ब्रांचेज के डेटा को सेंट्रलाइज करने के लिए, तो इजीली आप सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस से इसको यूज कर सकते हैं।
So that's all from my side. Now floor is open for question and answer. Sahil, over to you. Thank you, Rakesh, for covering the TP on AWS so deep. I think it was a wonderful session. Let's see if there are any certain queries raised in the chat box. I think there are no queries, so we can